Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 2, today we are going to discuss topic 4 part 1. So let's begin. See, this topic 4 of your paper 2 is very important because every year if you just go and analyze the previous year questions, you can find every year there is at least one question from this particular topic. And those questions are easier to handle if you are well versed with the contribution of anthropologists and their books and some particular peculiar things about them, so that is gonna fetch you more marks, right? So through this particular lecture, what we are trying to do, since there is not much to understand but to grasp in this particular topic, I would say, and you have to remember so many names, many of the books and their contribution, and specifically if you can remember specific dates, or if not dates, at least year, then that is very great. So what we are going to do through the lecture is to make you well versed with all these contributions. And to start with, in this particular part 1, firstly we'll see the background of it, like how the anthropology started growing in India, how was it pre-independence, how it changed after independence. So these are the things that we are going to discuss through this particular lecture. Moving ahead, when we are going to discuss about the contribution of 18th, 19th and 20th century scholar and administrator, there we will take up specific anthropologist. And when we are going to discuss this part in the part 2 of the lecture, then I'll tell you in detail who are the anthropologists that we are going to study, because UPSC has not given a particular list of anthropologists but just told you 18th, 19th and 20th century. Anyways, that is for the second part. Let's now focus on to the part 1, which is the emergence, growth and development in India. Okay, so agar when you talk about the growth, okay, then now when you talk about the growth of Indian anthropology, so basically this can be divided into 4 historical phases. और ये जो 4 historical phases है, it's not something कि ये बदल नहीं सकते या ये कोई पत्थर की लकीर है. There are many anthropologists who have divided the historical phases into different time periods. More or less मिलते जुलते हैं, but to make our life easier, हम बासु रॉय की जो classification है उसको follow करेंगे. And if you see the other anthropologists, few of them are like D.N. Majumdar and L.P. Vidyarthis. They have also given their divisions. और इन दोनों के division में, if you see the D.N. Majumdar and L.P. Vidyarthi, they have divided it into 3 phases. और इन 3 phases के भी अलग-अलग timelines है. Similarly, here the L.P. Vidyarthi timeline is here. But in case of Basu Roy, he has divided it into 4 different phases. Okay. तो हम इसको फॉलो करेंगे. सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन लाइक फ्रॉम वेयर दिस 4 फॉर्मेटिव फेजेस केम इन. ओके, एंड अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशियस, हम पर्टिकुलर जो भी ये टॉपिक 4 पढ़ेंगे, देयर इज नॉट मच टू मेक यू अंडरस्टैंड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. बट कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, मैम बस स्लाइड्स को देख के ही बोल रही हैं, तो मैं आपको कुछ अलग नहीं बता सकती, राइट? आई कैन टेल यू व्हाट इज देयर. And wherever I find that I should tell you some tricks and tips that how can you remember, I'll do so. So that is why the lecture becomes very important for you. Okay. So अगर आप बासु रॉय की classification को देखेंगे, so there is formative, constructive, analytical and evaluative. Okay. तो इसको आप याद रखेंगे with the time frame. और टाइम फ्रेम धीरे धीरे जब आप एक दो बारी पढ़ेंगे, फॉर द बिगिनर्स आई एम स्पेसिफिकली टेलिंग अबाउट, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं. ठीक है. तो फॉर्मेटिव फेज जो है आपका, हम एक एक करके अब इनको डिस्कस करते हैं. और यहाँ अगर आप टाइमलाइन की बात करें तो इट बिगिंस फ्रॉम 1774 टिल 1990. आपने हिस्ट्री में इतने सारे टाइमलाइंस याद रखे, तो आपको यहाँ पे भी इजीली याद हो जाएगा. देन इसके बाद कंस्ट्रक्टिव फेज आता है. कंस्ट्रक्टिव फेज 1919 में खत्म हुआ था ये वाला, तो ये 1920 से शुरू हो जाएगा एंड ऑलमोस्ट ये 49 तक जाएगा. फिर 49 से आगे बढ़ेंगे, विच इज़ योर एनालिटिकल. देन ये 1950 से शुरू होके 1989 तक जाएगा, और देन 1990 ऑनवर्ड्स जो है वो आपका इवैल्यूएटिव फेज में आएगा. तो ये डेट्स आपको याद होने चाहिए. ठीक है.
नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दीज फेजेस सेपरेटली. जब आप फॉर्मेटिव फेज की बात करते हैं तो एज वी ऑलरेडी सीन कि ये 1774 से और 1990. 1774 में ऐसा क्या हुआ बिकॉज ऑफ विच द एंथ्रोपोलॉजी स्टार्टेड टेकिंग शेप इन इंडिया. तो इस टाइम फ्रेम में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी. यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन योर मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स और जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं. सर विलियम जोन्स ने 1774 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की फाउंडेशन रखी थी, राइट. और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, ये सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो यूटिलाइज दिस टाइम टू गेट बैक टू द बेसिक्स, राइट. सो इस टाइम पे व्हेन दिस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल came into being, then you can say that anthropology actually started taking shape. और ऐसा क्यों? बिकॉज एशियाटिक सोसाइटी जो थी, यहाँ पे अलग अलग जो भी आपके रिसर्चर्स थे, ट्रैवलर्स थे, इवन जो आपके ब्रिटिश इंडिया के अलग अलग ऑफिसर्स थे, दे ऑल्सो टुक द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द पीपल. Because when you know about the people, then only you will be better able to govern them, right? And to make policies. So ये पूरा का पूरा पर्पस यहीं से शुरू हुआ. आज के डेट में भी अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को देखेंगे, स्पेशली द अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी पार्ट, वो यही सारे रोल्स प्ले करती है. तो उस टाइम पे भी यही चीज़ें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने करनी शुरू की थी. नाउ कम्स इन कि ये जो कुछ कुछ पब्लिकेशंस है ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी, ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है. अब इसको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? द बेस्ट थिंग इज टू रीड एंड रिवाइज, रीड एंड रिवाइज. और दूसरी चीज़ है, जब जैसे जैसे हम ये फॉर्मेटिव फेज के बारे में और आगे के फेजेस के बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, तो दिस माइट कम टू योर माइंड दैट इतनी सारी चीज़ें हम याद कैसे रखेंगे. क्या ये आपको सोशल साइंसेज जो आप स्कूल के टाइम पे लिखा करते थे उसी तरह रट के लिखनी है? सी ऑफकोर्स रट के नहीं लिखनी है, बट एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स ओवर हियर. तो अगर आपको एक बार में नहीं याद हो रही है चीज़ें, डोंट वरी. स्पेशली जब आप एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम जो आपका मेंस का होगा, जब आप वो लिखने जाओगे और उसके पहले जो आपने रिवाइज करा होगा ना, आपको इजीली याद हो जाएगा. बट अभी के लिए आप उसको बार बार पढ़ते रहो, देखते रहो. और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये रट के लिखना है, बट इवेंचुअली आप देखोगे व्हेन यू स्टार्ट रिमेंबरिंग ऑल द बुक्स एंड द नेम्स, तो वो फ्लो आपका इजीली बन जाएगा. तो उसके लिए अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर नाउ योर फोकस शुड बी टू सी वॉट ऑल इज देयर, ठीक है. वो बाद में चीज़ें याद हो जाएंगी, तो उसके लिए आप चिंता ना करें. अब आप इनके अकाउंट्स देखिए, इनके जो पब्लिकेशंस थे. ये जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, याद करना बहुत आसान है. इंडियन एंटिक्वेरी, जर्नल्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी. अब इन बुक्स के अंदर क्या है, वो कंटेंट हमारे लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको क्या याद रखना है, बुक्स क्या है. और अगर बुक्स के केस में आप उनके जो टाइम है वो याद रखें, वेरी गुड. बट आई अज्यूम कि बुक्स के जो टाइम है वो याद रखना, स्पेशली फॉर ऑल द बुक्स, इज डिफिकल्ट. तो आप ऑल द बुक्स का ना रख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होंगे उनका आप याद. देन इसी पीरियड में बहुत सारे अलग अलग मिशनरीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन्होंने अपनी एथनोग्राफिक स्टडीज़ करी थी. देन इसके अंदर भी इफ़ यू सी एंड इफ़ यू कैन इंटरलिंक, हम WHR रिवर के बारे में पढ़ते हैं जब आप स्कूल ऑफ डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हो इन योर एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज टॉपिक 6 ऑफ पेपर 1. सो देयर यू स्टडी अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑल्सो. और इन्होंने टोडाज ऑफ नीलगिरी पर स्टडी किया था, उनकी किनशिप सिस्टम, फैमिली, मैरिज, इन सारी चीज़ों को इन्होंने देखा था. और ऐसे एग्जाम्पल्स आप पेपर 1 में भी यूज़ कर सकते हो. देन रेडक्लिफ ब्राउन, ही इज़ ऑल्सो अ वेल नोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिनके बारे में आपने ऑलरेडी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में पढ़ रखा है. अगेन इनके लिए भी वही चीज़ें एप्लीकेबल है. जब इन्होंने अंडमान आइलैंडर्स पर स्टडीज़ किया था, तो वहाँ पर उन्होंने उनकी किनशिप सिस्टम, मैरिज सिस्टम, फैमिली सिस्टम, इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों को स्टडी किया था. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर, एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू रिमेंबर एनीथिंग वेरी न्यू ओवर हियर, ठीक है. आपने जो पहले पढ़ रखा है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल इट and produce it over here, because that is how the interlinkage is done. Then your H.H. Risley. H.H. Risley के बारे में भी आपने अपने पेपर 2 के टॉपिक 2 के अंदर पढ़ा हुआ है. तो ये सारी स्टडीज़ भी इसी टाइम पे की गई थी. अब भले ही आप ये टाइम फ्रेम भूल जाएं, बट एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए कि ये फॉर्मेटिव फेज के दौरान ही किया गया था. देन यू विल बी ईजिली एबल टू रिकॉल दिस थिंग्स, ठीक है. अब इसके अलावा बात आती है और कौन कौन से एथनोग्राफिक स्टडीज़ और एडमिनिस्ट्रेटर. तो ये तो 3 आपके सेफ साइड हो ही गए, 1 2 3 तो आप मेंशन कर ही दोगे, ठीक है.
अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपको और चीज़ें मेंशन कर सकते हो वो ये रहे, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना याद रख पाते हो, बट ये 3 तो आपको लिख के आना है, ठीक है। इसके अलावा भी आप अगर इनको 2-3 बार देखोगे तो बाकी के नेम्स आपको याद हो जाएंगे, बिकॉज दैट माइट नॉट बी वेरी फेमिलियर विद यू, बट एज यू आर गोइंग टू रिवाइज इट विल बी ओके। देन यहाँ तक तो हमने बात कर ली जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और मिशनरीज थे, उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव फेज। अब बारी आती है इंडियन स्कॉलर्स की। अगेन इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इंडियन स्कॉलर्स में भी जब आप स्पेसिफिक स्कॉलर्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, देयर यू कैन फाइंड देयर कंट्रीब्यूशन, बट आपको बस करना इतना है, यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क एंड रिमेंबर कि ओके एस.सी. रॉय बहुत पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, शुरुआती दौर के थे, तो ये फॉर्मेटिव फेज के रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो एस.सी. रॉय के और भी जो दूसरे कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। हियर आई हैव ट्राई टू मेंशन वेरी ब्रीफली, बट अगर डिपेंडिंग अपॉन कि वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, आप एस.सी. रॉय के और भी कॉन्ट्रीब्यूशन इस फॉर्मेटिव फेज के अंदर लिख सकते हो। दैट इज व्हाट कॉल दी स्मार्ट वर्क ओके। देन आर.पी. चंदा, इन्होंने इंडो आर्यन बुक लिखी थी, इंडो आर्यन रेस 1916 में, तो ये आपको याद रखनी है, देन ऑल्सो यू कैन मेंशन अबाउट इट। देन आपको एल के अनंत कृष्ण अय्यर, इन्होंने भी काफ़ी सारे काम किए थे और इनके बारे में भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इनके काम को भी आप मेंशन कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू, आपको स्मार्ट वर्क करना है, इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के टाइम फ्रेम याद रखने हैं कि कौन से ईयर्स में ये एक्टिव रहे थे। अगर आपको वो याद हो गया तो देन आप इसको फिट कर पाओगे। जैसे आने वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट एल.पी. विद्यार्थी, डी.एन. मजुमदार, एन.के. बोस, आप जिनके बारे में भी पढ़ोगे, अगर आपको पता है वो किस ईयर में एक्टिव थे, देन आप इजीली उनको फॉर्मेटिव, कंस्ट्रक्टिव, हर जगह जहाँ पे भी एप्लीकेबल हो इंक्लूड कर सकते हो। देन आपका कंस्ट्रक्टिव फेज शुरू होता है फ्रॉम 1920 टिल 1949, दैट इज 2 years आफ्टर द इंडिपेंडेंस इट कंटिन्यूड। अब कंस्ट्रक्टिव एंड फॉर्मेटिव में क्या डिफरेंस है, बिकॉज हमने देखा फॉर्मेटिव की शुरुआत of anthropology जब हुई, which is by the foundation of the Asiatic Society of Bengal, वहीं आपका कंस्ट्रक्टिव फेज फॉर्मेटिव से इसलिए डिफरेंशिएट किया जा सकता है बिकॉज यहाँ पे हम सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। जो आपके फॉर्मेटिव फेज में थे उसमें मिशनरीज, एडमिनिस्ट्रेटर स्टडी कर रहे थे मोस्टली फॉर द गवर्नेंस पर्पसेस, वो कैसे गवर्न कर सके, कैसे पॉलिसी मेकिंग हो सके। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव फेज के अंदर सोशल इंस्टीट्यूशंस के भी अंदर मतलब सोशल इंस्टीट्यूशंस के भी ऊपर फोकस किया जा रहा है, राइट। अब इसके अंदर आपको जो जो चीज़ें मेंशन करनी है, अगेन जब आप वो 18, 19, 20th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, देयर यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज़। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, विच इज़ कि ये क्या डिफरेंशिएट करता है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स। देन और कौन कौन से चीज़ें हुई, लाइक आपकी 1919 में सोशल एंथ्रोपोलॉजी को बॉम्बे यूनिवर्सिटी की सोशोलॉजी के करिकुलम में इंक्लूड किया गया। आप अगेन पेपर 1 में पढ़ते हो एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी के क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनको ट्विन सिस्टर्स भी कहा गया है। सो उस टाइम पे स्पेसिफिकली हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी एज यू नो इट हैज़ लाइक 4 ब्रांचेस टू मेक योर लाइफ सिंपलर। देन इन 4 ब्रांचेस में भी यहाँ पे हम बस सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें जो कि सोशोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया गया। देन आपकी 1920 में सोशल एंथ्रोपोलॉजी को पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम में इंक्लूड किया गया ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी, यानी कि पहले बॉम्बे फिर कैलकाटा, देन इवेंचुअली 1921 में, यहाँ पे हम 1919 से बात कर रहे हैं, देन फिर 1920 में गए, यहाँ पे बॉम्बे, यहाँ पे कैलकाटा, देन 1921 में क्या याद रखना है, अगेन कैलकाटा, दिस इज ऑल्सो कैलकाटा, दिस इज ऑल्सो कैलकाटा। बट यहाँ पे बड़ी बात ये हुई कि 1921 में एक डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ही स्टैब्लिश कर दिया गया। सो दिस इज अगेन अ मेजर माइलस्टोन। और इसके बाद जो अलग अलग जगहों पे स्टैब्लिशमेंट की गई हैं, विच इज़ योर दिल्ली, लखनऊ एंड गुवाहाटी, विच इज़ इन 1947, 50 एंड 52। ऑल्दो ये 50 और 52 वाला आपके इस कंस्ट्रक्टिव के स्कोप से बाहर है, बट स्टिल आई मेंशन ताकि आपको ये चीज़ें पता रहे कि ये एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। आप चाहो तो लखनऊ और गुवाहाटी को कंस्ट्रक्टिव फेज में लिखने से बच सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। देन एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो हमने अभी तक कंस्ट्रक्टिव फेज के अंदर जो चीज़ें देखी, क्या डिफरेंशिएट करती है और कौन अलग अलग आपके करिकुलम या एकेडमिक पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें की गई वो। देन बात आती है कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था।
तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये बहुत आसान है वंस यू आर वेल वर्स्ड विद द एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन. टू नेम अ फ्यू ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर आप बात करना चाहें, देन रेडक्लिफ ब्राउन, जे एच होटॉन, एस सी रॉय के बारे में आप काफ़ी पढ़ेंगे, ये शुरुआती एंथ्रोपोलॉजिस्ट में से एक थे. देन इन्होंने 1921 में एक पब्लिकेशन शुरू किया था विच इज़ मैन इन इंडिया. ठीक है. देन ये मैन इन इंडिया के एडिटर्स भी आगे चल के बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे थे, वो आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आपके कंस्ट्रक्टिव फेज के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. वहीं एलपी विद्यार्थी ने एक बात कही थी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू मेंशन इन द कंस्ट्रक्टिव, दैट जो आपके उस टाइम पे इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ करते थे, आज के डेट में भी हुआ करते, तो इंडियन साइंस कांग्रेस की जो थीम थी ऑफ ईयर 1938 विच मीन्स द 25th इंडियन साइंस कांग्रेस, वो एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया थी. एंड बिकॉज ऑफ दिस थीम डिस्कशन शुरू हुए, लोगों का इंटरेस्ट शुरू हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजिस्ट एकेडमिशियंस ने एंथ्रोपोलॉजी की ओर इंटरेस्ट दिखाया, एंड विच इज़ वाई आगे चल के एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी हुआ है इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो. ठीक है. बिकॉज हम पूरा का पूरा ग्रोथ इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं. देन कुछ अगर आप वर्क इंक्लूड करना चाहते हैं तो दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट को यहाँ पे डालना चाहते हैं. अगर आपको याद रहेगा तो आप डाल दोगे, क्योंकि जब हम एम एन श्रीनिवासन के बारे में पढ़ेंगे तब उनके बारे में आप जानेंगे कि उन्होंने मैरिज फैमिली पे मैसूर में रामपुरा विलेज के अंदर क्या क्या स्टडी करी थी. वहीं जब आप एन के बोस के बारे में पढ़ेंगे देन इनके बारे में भी आपको पता चलेगा कि इन्होंने कैसे ट्राइब्स के ऊपर स्टडी करा था, कैसे इन्होंने कन्वर्जन के ऊपर स्टडी करा, लाइक हाउ द ट्राइब्स गेट कन्वर्टेड इनटू द हिंदू रिलीजन एंड सो फोर्थ. तो ये सारी चीज़ें आप आगे चल के पढ़ोगे विच इज़ व्हाट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर. देन और अलग अलग जो वर्क अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किए हैं वो भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो. और दूसरी चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्टिव फेज के दौरान, बिकॉज अभी तक ज़्यादातर फोकस सोशल एंथ्रोपोलॉजी पे रहा है, सोशल पर्सपेक्टिव पे रहा है, ट्राइबल स्टडीज़ पे रहा है, बट कंस्ट्रक्टिव फेज के एंड तक आते आते कहीं ना कहीं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी काफ़ी सारा काम किया गया विच इज़ गुड साइन, राइट. ये 1930s की आप बात कर सकते हो. इस टाइम पे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी काम हुआ है इंडिया में. और ये कुछ मेजर वर्क्स जो है आपको याद रखने हैं. बी एस गुहा, अगेन ये आप जब पढ़ते हो टॉपिक 2 ऑफ योर पेपर 2 उसके अंदर आप पढ़ोगे. डी एन मजुमदार ने रेशियल सर्वे कंडक्ट किया था, ये जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तब आप जानोगे. देन ये कुछ अलग अलग ब्लड ग्रुप सर्वेज किए गए थे, वो भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ही पार्ट है. एस एस सरकार के बारे में भी आपको टॉपिक 2 के अंदर पढ़ना है. तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू इज कि इस टॉपिक के अंदर आपको वही सारी चीज़ें रिकॉल करके लिखनी है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो अगेन आप वो स्मार्ट वर्क वाला चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा. देन बात करते हैं एनालिटिकल पीरियड की. And trust me, this analytical period, to remember what you have to write in this period, is way more easier than all the other periods. The reason being, जो majority of anthropologists आप आगे पढ़ने वाले हैं, उनके works आपको analytical period में ही मिल जाएंगे. So those are the further points that you can include over here. Now again, जैसा हमने देखा था constructive को formative से क्या differentiate करता है, वैसे ही analytical में क्या differentiation आया which like make it a different or a separate period in itself. तो यहाँ पे particularly आपके जो कास्ट स्टडीज़ है या आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की स्टडीज़ है उस पर भी और ज़्यादा फोकस होने लगा. बिकॉज कंस्ट्रक्टिव के अंदर सोशल इंस्टीट्यूशंस तो हो रहे थे बट उसमें भी मोस्टली ट्राइबल फोकस या ट्राइबल ओरिएंटेड रहे. बट एनालिटिकल के अंदर अभी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ भी आ गई हैं जिसके अंदर आप कास्ट स्टडीज़ कर रहे हो. और यहाँ पे जो अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग कंसेप्ट्स दिए हैं जिनमें से कुछ आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, लाइक द सीक्रेट कॉम्प्लेक्स और नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स भी आप बात कर सकते हो. वहीं संस्कृताइजेशन, पैराकोलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन हम आने वाले टॉपिक्स के अंदर देखेंगे. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. अब कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया, अगेन दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. जैसे कि डी एन मजुमदार के बारे में आप पढ़ेंगे, इनके बोस के बारे में पढ़ेंगे, तो इन्होंने अपने काम यहाँ पे किए थे. अब इनके वर्क्स को भी आप स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू. देन कुछ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे जिन्होंने फोकस किया था. बिकॉज ये टाइम फ्रेम अगर आप देखें दिस इज 1950 और 1950 से 1989 तक चला. तो 1950 व्हेन मेनी ऑफ दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वेर गेटिंग इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे
यूएस एक चाचा बना बैठा था, यू कैन से, and that US was sending their anthropologists to various third world countries to study their society. ओके, बिकॉज उनको थोड़ा अपने आप को यू कैन से द सॉफ्ट पावर, ये एक सॉफ्ट पावर का भी एंगल यहाँ पे आता है. इसी वजह से अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी जो थे वो इंडिया में आए और उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट करा एंड इवेंचुअली उन्होंने बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करा विच अल्टीमेटली लेड टू वेरियस अदर स्टडीज़. और स्पेसिफिकली अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लाइक मॉरिस ऑपलर, ऑस्कर लिविस ने रूरल कॉस्मोपॉलिटन का कंसेप्ट दिया था. तो ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ोगे देन इवेंचुअली आप बहुत ईजिली रिलेट कर पाओगे. डेविड मेडलबर्न इज़ नोन फॉर द अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, उसके जो हॉलिस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हॉलिस्टिक क्यों है, ये सारी चीज़ें इन्होंने काफ़ी बातचीत करी हुई है. तो ये हम जब अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ेंगे तो उस टाइम पे भी हम देखेंगे. देन अगेन जो वही सारी चीज़ें आप पढ़ोगे आपको यहाँ पे लाके उसको प्रेजेंट करनी है. दीज आर नेम ऑफ द फ्यू एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो आप मेंशन कर सकते हो. देन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कुछ वर्क्स भी आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो. तो दिस इज जस्ट एन आइडिया, चाहो तो आप ये भी उतार सकते हो. बट बाई चांस अगर आपको ऐसे रटा रटाया चीज़ ना याद हो तो जो भी आपके दिमाग में याद आ रहा है कंसर्न टू दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप वो चीज़ लिख सकते हो. देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर अंटिल यू आर एडहरिंग टू द फैक्ट्स. ठीक है. उसी तरह से देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे मेंशन कर रखे हैं. देयर इज नथिंग फॉर यू टू टेल यहाँ पे कि ये क्या है, बिकॉज एम एन श्रीनिवासन ने अगर 1966 में सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया लिखा था तो उन्होंने ये किताब लिखी थी. ठीक है, मैं इसमें आपको कुछ अलग से नहीं बता सकती. उसी तरह से इरावती कार्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के ऊपर भी काफ़ी काम किया. एस.सी. दुबे ने भी काम किया, डी.एन. मजुमदार, एल.बी. विद्यार्थी, इन सब के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. और ये कुछ वैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम हैं जो शायद आप उतना फ्रीक्वेंटली नहीं सुनते हो, बिकॉज ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है दे आर द वेरी फेमस वन जिनके बारे में आपको इवेंचुअली याद हो जाएगा. लेकिन ये आप कह सकते हो कि कुछ वैसे अननोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, अननोन तो नहीं कह सकते, दे हैव देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दे आर डन अ वेरी गुड जॉब. बट हम उनके बारे में एज अ स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो आप इनको भी मेंशन कर सकते हो. बिकॉज आई एज्यूम बहुत सारे लोग इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में नहीं जानेंगे. और अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप इनके वर्क को भी स्पेसिफिकली देख सकते हो जो कि आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इन दी फॉर्मेटिव फेज. ऑलराइट, तो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट आप लेक्चर को देखिए, यू विल गेट लॉट ऑफ आइडिया दैट हाउ यू कैन मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड फेच मोर मार्क्स. Then talking about the last phase which is your evaluative phase. अब जो आपका evaluative phase है ये 1990 onwards बताया जा रहा है. और 1990 onwards अगर आप देखेंगे तो जो फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनके बारे में आप के सिलेबस में मेंशन है वो आपको 1990 के बाद ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे. सो हियर कम्स द रोल कि आपको ये वाला जो इवेलुएटिव फेज है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी जो शायद आपको आगे और दूसरे टॉपिक्स में ना मिले. ठीक है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो रट्टू तोता वाली चीज़ में भी लग सकती है. और अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे 1990s तो ये वो टाइम है जब इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और तेज़ी से हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है. सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी उसी तरीके से बदलाव करना होगा इन देयर ओन स्टडीज़. राइट, और जो पहले स्टडीज़ की गई हैं हो सकता है वो आज के डेट में एप्लीकेबल ना हो, चाहे वो जजमानी के ऊपर हो, बिकॉज जजमानी सिस्टम आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता. आज की डेट में इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी का ज़्यादा स्कोप है. तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ने लगी. और इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग लाइक द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि पहले किसी ने कुछ स्टडी किया है, चाहे वो कास्ट सिस्टम को लेके हो या ट्राइबल को लेके हो, ट्राइबल के स्टेटस को लेके हो. तो ये सारी चीज़ें फिर से दोबारा से जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने स्टडी करना शुरू किया दैट हाउ द चेंज आर बीइंग डन इन द सोसाइटी विद द टाइम, और आज की डेट में वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती है. तो ये सारी चीज़ें की गई ड्यूरिंग द इवैल्यूएटिव फेज. अब इसके अंदर भी आपको कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए दैट यू कैन मेंशन दैट लाइक द बुक्स एंड ऑल. तो ये आप मेंशन कर सकते हो सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री, इसके ऊपर स्टडी की गई थी जो आपके इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी आप डाल सकते हो. देन इसके अलावा कौन कौन से अलग अलग मेथड्स यूज़ किए गए थे, क्योंकि पहले ज़्यादातर जो स्टडीज़ की जाती थी वो एथनोग्राफी, एथनोलॉजी इनके बेसिस पे की जाती थी. बट अभी के डेट में बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स भी यूज़ होने लगे जिसके हेल्प से एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ किया करते थे. तो दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर.
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इवैल्यूएटिव के अंदर मेंशन करनी है. आई एम नॉट गोइंग टू लाइक अगेन रीड आउट कि क्या क्या चीज़ें हैं, बिकॉज ये आपको नोट्स में भी है. दिस इज हाउ यू कैन मेंशन अबाउट ऑल द फेजेस. ऑलराइट. और आगे चल के आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसलिए डोंट टेक टेंशन. लेट्स मेक योर लाइफ बिट ईजियर. आपको ट्राइबल स्टडीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है, दैट टेल अबाउट द ग्रोथ ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ इन इंडिया. देन उसके लिए भी आपको वो स्मार्ट वर्क वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. वो कैसे? ट्राइबल के केस में आपको फॉर्मेटिव फेज मिलेगा. देन उसी तरीके से जब आप आर्कियोलॉजी की बात करते हो, ग्रोथ ऑफ आर्कियोलॉजी, उसमें भी आपको फॉर्मेटिव, कंस्ट्रक्टिव, इस तरह से फेजेस मिलेंगे. तो ये मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट इंक्लूड किया है, आपको ये डिटेल्स नोट्स में भी मिल जाएंगी. तो जब आप फॉर्मेटिव फेज देखोगे ऑफ द ट्राइबल स्टडी, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊँ, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें, आई वुड से लाइक 90% ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम जो अभी हमने ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ा है. ठीक है, कोई अलग से आपको उसमें चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है. आपको वही सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी है. बस जहाँ पे बात आ रही है कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की, तो आप उससे अलग कर देंगे. तो इस तरीके से आप ट्राइबल स्टडीज़ हो या आपके प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो, ऑफ कोर्स आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में तो डिफरेंसेस होंगे ही होंगे, बिकॉज वो आपको अलग से याद करनी पड़ेगी चीज़ें. लेकिन आर्कियोलॉजिकल अंदर के अंदर भी जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन योर टॉपिक 1.1 ऑफ पेपर 2 और पेपर 1 के अंदर भी जो भी आप चीज़ें पढ़ते हो, स्पेसिफिकली पेपर 1 के अंदर जो आपने पढ़ा है वो तो वर्ल्ड से ज़्यादा कोरिलेटेड होता है. बट स्टिल अगर आप वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स उठा सकते हो जो आपको लगता है इंडियन कंटेक्स्ट में हुई थी, और पेपर 2 के अंदर 1.1 तो है ही, जिसमें आपको पूरी की पूरी इंडिया में जो भी अलग अलग फेजेस आए उसके बारे में पढ़ना है. आप उसको ही फॉर्मेटिव फेज में, कंस्ट्रक्टिव फेज में, एनालिटिकल फेज में लिख सकते हो. ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड, एंड दिस इज हाउ योर लाइफ कैन बिकम मच ईजियर. ठीक है, ताकि आपको बार बार अलग अलग चीज़ें याद ना करनी पड़े. Alright, and with this we have completed part 1 of this topic, and I'll come with the part 2 very soon. Thank you so much.